Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Just wait. So everybody join, or someone is remaining? Including you, Prabhuji, 7 people are there. 7 जन ज्वाइन कीजिए. Okay. Okay. So we will start the prayers. Om Agyanti Mirandasya Jnananjana Shalakaya Churunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nidhinam Namaste Saraswate Deve Gauravani Vicharini Shesha Shunnavadi Paschatya Dishita Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. So welcome everyone to this next talk of instructions, which we have started from yesterday, and today is our second class. So can anybody share any point from yesterday's class, what we have discussed? Then we can move forward. If anyone can share any point from Bharat Prabhu is there. Okay, please. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavata Pranam. Tomorrow we learned that if we can control 6 urges, then he is ready to means, ready to be a guru, qualified to be a guru. The 6 urges are urge to speech, urge of mind, urge of anger, Your voice urge is not your voice, some background sound is coming. You can use your phone. Yes, I'm A using lot of background sound is coming. Yes. Okay, meanwhile, anyone else can share? Okay, Ansuman. हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। कल आपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब बताए थे कि उसे उपदेश अमृत बोलते हैं। जैसे कि नेक्टर होता है अमृत और उपदेश होता है, तो इसलिए तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन को उपदेश जो अमृत जैसा लगता है जिस उपदेश को, उसको उपदेशामृत बोलते हैं। उसके बाद आपने पूछा था 4 संप्रदाय के बारे में, तो 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो ब्रह्म माधव संप्रदाय, उसके बाद रुद्र संप्रदाय, उसके बाद श्री संप्रदाय, उसके बाद कुमार संप्रदाय, 4 संप्रदाय हैं टोटल। और प्रभु जी आपने बोला था 6 टाइप्स के, एक एक पॉइंट शेयर करना है या Only one point. ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। Okay, Abhay Guru. Abhay Guru wants to share. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं बिना माइक खोले ही बोल रहा था। प्रभु जी, आपने 4 संप्रदाय का आचार्य का नाम भी बताया था, कल रिवीजन करा देता हूँ। ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के हैं माधव आचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य और कुमार संप्रदाय के निम्बार्क। और प्रभु जी, आपने 6 अर्ज भी बताए थे कि जो एक गुरु के पास होना चाहिए, सो दैट वी कैन कंसीडर हिम एज गुरु। वो है एक अर्ज टू स्पीक,
Ors to mind, Ors to belly, I mean Ors to belly, Ors to genital, उसके बाद Ors to, दो नाम प्रभु जी मैं भूल गया, मैंने एक्चुअली कल लिखा ही नहीं था प्रभु जी, मैं दो नाम भूल गया। Okay. Yeah. Ors to anger था एक और एक भूल गया। Yeah. So we will move forward. Yeah, to- Is my PPT is visible to all of you? yes, Prabhuji. Okay. Yeah. Yesterday we have taught, we took one example like of thief. So there are 4 type of people. So the first category of people are one who understand just by hearing, right? So Prabhupada explained this by taking the example of thief. So first class of thief, he understands simply by just hearing from the scriptures and stop to steal, right? Second class, first of all, he will be arrested, then he will refrain from the theft. And third class, he will be arrested and punished. Means he will take some experience, then he will stop the stealing. And fourth class people are those, they never understand. They will commit the same activities again and again. They will be arrested again and again. They will be punished again and again, but still they will continue the same thing. So these are the 4 categories of people. So, so in which category we should come? Yesterday I told you, we should, although ideally we should try to come in first category, but if first category is not possible, then at most we should come in the category of second class, but no third class, no fourth class. Okay, but try to come in the first category. First category means just to convince. Yes, it is written, it is mentioned in the Shastras, and I have heard from the bona fide authority, Guru, Sadhu, Shastras. Right? These are the authority for all of us. Guru, Sadhu, Shastra. Whatever Guru, Sadhu is telling, whatever mentioned in the scriptures, they are the bottom line for all of us. They should be bottom line for all of us. Then there is no need to check out whether it is true or false. No, it is already checked by our previous acharyas. They have done all type of researches. Right? They have done all type of research. We need not to do any type of research. We have to just take it and release. Yesterday I gave the example. It is just like a mango fruit which doesn't have any seed. Right? And only pulp is there. Only fruit is there. Right? That is Srimad Bhagavatam. Nigam kalpatarur galitam phalam suk mukhat drav amrit samyutam evat bhagavatam rasmalayam muhurhu bhuv bhavitah. तो ये जो है, जैसे आप देखते हैं कोई जो फल होता है, जैसे अमरूद है या बेर है ना, ऑलरेडी ये मतलब मीठा होता है, लेकिन जब इसको कुछ जो पैरेट, सुक मीन्स पैरेट, जब उसको वो टच करता है, जब उसको थोड़ा सा चख लेता है, तो वो क्या है, और भी टेस्ट लगता है, राइट? तो श्रीमद् भागवतम इज लाइक दैट ओनली. देयर इज ओनली फ्रूट, ओनली नेक्टर इज देयर. Okay. So these examples we have seen in yesterday's class. Now we will discuss in today's class the praschittam. Okay, like when we commit some mistakes, then how to atonement from that mistake. So here Srila Rupa Goswami is mentioning one kind of atonement, like this is atonement not for devotees. This atonement is for the like a materialistic person. How they, like when they commit some sinful activity, then how they repent. So this example is given for the materialistic persons. So first example is given elephant bathing. So what elephant do? Yeah. He took bath a long time in the river or pond, especially in the summer season. Then after taking a bath a long time, then he took
the mud spread all over the body. Then again go to the river and takes bath. So this same thing, the same process repeating again and again. So this is useless, completely useless. There is no benefit at all. So this is like a seventh offense, which we recite in every day in the morning time. So what is the seventh offense? Can anybody tell? What is the seventh offense? Ansuman Prabhu, Avinash Prabhu, Abhay Prabhu, anyone else? Anybody? Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. To commit sinful activities on the strength of holy name. Okay. What does that mean? नाम के बल पर पाप करना प्रभुजी, मतलब हरिनाम भी जप करना, उसके साथ मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट भी। नाम के बल पर पाप करने का मतलब क्या होता है? To think that okay, I'm doing bhakti, I'm chanting the holy name of the Lord, right? So if so at the same time I can commit some sinful activity like to eat some from outside, like from our level, right? I'm giving example from our level, right? So like to go to outside and like something you like rasgulla or gulab jamun or patties, whatever. So you go to the shop and without offering you take it, right? And you consider that I'm chanting the holy name of the Lord, I'm chanting Hare Krishna mantra, I'm chanting 60 rounds, even more than 60 rounds I'm chanting. So Krishna will forgive me. Krishna will not consider this type of thing. These are small things. This is called the seventh offense. नाम के बल पर पाप करना, मतलब हम ये सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा बाहर से कुछ खा भी लेंगे तो क्या होता है, वो तो विदाउट ऑनियन गार्लिक है ना, कंठी माला तो पहने हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाना है, विदाउट ऑनियन गार्लिक तो खा सकते हैं, तो बाहर से खा लेंगे नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं नाम के बल पर पाप करना, कि हमें कर्मी के हाथ से बना हुआ नहीं खाना चाहिए। डिवोटीज मतलब के वी हैव टू टेक ओनली प्रसादम, ये चीज को मतलब प्रण लेना चाहिए हमें। कुछ भी हो जाए, मैं जो है कर्मी व्यक्ति के द्वारा, भले वो ठीक है विदाउट ऑनियन गार्लिक की शॉप है, बट ही इज नॉट डिवोटी। अगर डिवोटी अगर है तो ठीक है, वो बात अलग है, भक्त है, कंठी माला पे नहीं है, राइट, अगर डिवोटी है तो दैट्स ऑल राइट। लेकिन अगर वो भक्त नहीं है, कर्मी व्यक्ति है और विदाउट ऑनियन गार्लिक का शॉप है, तो वी शुड नॉट टेक इट। हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन में वो चल सकता है, लेकिन इमरजेंसी को हमें जनरल रूल नहीं बनाना चाहिए, वो हैबिट में नहीं आना चाहिए कि हाँ चलो कल खा ले, चलो आज भी, पर धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो हैबिट बन जाता है। दैट इज नॉट गुड फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। उस पर क्या होगा, आपका जो भक्ति है ना वो हार्म होगा, और धीरे धीरे फिर वो आपको अफेक्ट करेगा, आपका भक्ति धीरे धीरे वो डाउन चला जाएगा, वो आपको पहले पता नहीं चलेगा, बाद में कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद आपको पता चलेगा। फिर आपको फिर लगता है कि यार मेरा मन क्यों लग रहा है, चैंटिंग में मन क्यों नहीं लग रहा है मेरा, है ना, भक्तों के प्रति अपराध क्यों हो रहा है, राइट, ये फील होता है हमें। तो फिर हम समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ अपराध हो रहा है, मैं तो कभी किसी को गलत बोला नहीं, लेकिन अपराध कहाँ हो रहा है, तो अपराध यहाँ हो गया है, जो कि आपको पता नहीं। एक्चुअली क्या होता है, भक्ति में कोई बड़े अपराध नहीं होते हमसे, भक्ति में हमसे छोटे छोटे अपराध ही होते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। नोइंगली तो हम कभी नहीं करते हैं, ऑफ कोर्स, है ना, बहुत कम ही चांसेस होते हैं। अननोइंगली लेकिन हमसे बहुत सारे अपराध होते हैं, और ये सब अननोइंग वाले ही हैं, है ना। आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लेकिन इस चीज का पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो चीज है, बाहर का खाना पीना जो है, वो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। और हम ये सोच के उसको दबा देते हैं कि हम तो हरि नाम कर रहे हैं, हम तो मतलब मंदिर में रह ही रहे हैं, भक्तों के साथ में तो रह ही रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर बाहर से खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, वो आपको बाद में पता चलेगा। इसलिए हमें ये पढ़ लेना चाहिए, चाहे हम मंदिर में रहें, चाहे बेस में रहें, या बाहर रहें, कहीं पे भी रहें, घर पे रहें, वेयर एवर, ये हमें सोचना चाहिए कि आई एम practicing कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई एम चैंटिंग द होली नेम। तो बाहर से मैं जो भी खाऊंगा भोग लगा के ही खाऊंगा, प्रसाद ही खाऊंगा, लेकिन कर्मी के हाथ से, मटेरियलिस्टिक व्यक्ति के हाथ से बना हुआ नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो चीज आपकी भक्ति पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी, कर्मी के व्यक्ति से हाथ से बना हुआ करिए। सो वेरी वेरी मच केयरफुल, ये सेवेंथ ऑफेंस हमसे बहुत ज्यादा होता है, सेवेंथ ऑफेंस। सो वी शुड बी वेरी वेरी मच केयरफुल नॉट टू कमिट सेवेंथ ऑफेंस। तो एलिफेंट बाथिंग मतलब
टू कमिट सेवेंथ ऑफेंस, नाम के बैर पर पाप करना। तो इसमें एक एग्जांपल वो दिया है कि इसका क्रिश्चियन कन्फेशंस, तो पूरा मंडे से लेकर सैटरडे तक मेडिटेटिंग करेंगे, sinful activities they will perform, and on Sunday they will go to church and they will confess, they will repent, right? They kindly forgive us whatever sinful activities we have performed, and again same sinful activity starts from the Monday. This is called seventh offense. Sinful activity cannot, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, sinful activity cannot be counteracted by pious activity. ये भी बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन होता है, वो सोचते हैं कि हाँ एक इतना गलत काम कर लिया है तो थोड़ा सा पुण्य कर देते हैं, तो क्या होगा, जो गलत काम किया है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये प्लस माइनस ये नहीं चलता है, ये शायद मैंने भगवद्गीता में क्लास में या कहीं तो बताया है मैंने, समवेयर आई टोल्ड दिस पॉइंट एक्चुअली, कि ये यहाँ पर ये प्लस माइनस यहाँ नहीं चलता है कि प्लस 15 माइनस 15 जीरो हो गया, तो ये मैथमेटिक्स यहाँ काम नहीं करता है। आपने जो सिंफुल एक्टिविटी किया है उसका रिएक्शन आपको लगेगा इंडिविजुअल रिएक्शन, और जो पुण्य जो आप मतलब पायस एक्टिविटी जो आप जो करोगे उसका भी आपको रिएक्शन मिलेगा, मतलब गुड रिएक्शन आपको उसका मिलेगा, लेकिन काउंट्रैक्ट नहीं होगा। राइट, काउंट्रैक्ट अगर होगा तो वो केवल एक ही माध्यम है, तो वो है केवल भक्ति के माध्यम से। राइट, तो पायस एक्टिविटी से भी नहीं होगा। तो इस भौतिकत में आप मतलब क्या गुड एक्टिविटी करें या बैड एक्टिविटी करें, रिएक्शन तो आपको लगेगा ही लगेगा। लेकिन भक्ति का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस? द पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू कंप्लीटली बिकम फ्री फ्रॉम ऑफ एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। क्योंकि हम किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो गुड एक्टिविटी हो चाहे बैड एक्टिविटी, उसका रिएक्शन तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन भक्ति का पर्पस क्या होता है? भक्ति क्या करता है, केवल जो रिएक्शन है, रिएक्शन का जो बीज जो है, सीड, उसको ही क्या कर देता है, पूरा फ्राइड कर देता है। नो मोर रिएक्शन। इसलिए भक्ति में कुछ रिएक्शन नहीं लगता है हमें। क्यों रिएक्शन नहीं लगता? क्योंकि इसमें हम जो एक्टिविटी करते हैं वो ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी है। राइट, इसलिए यहाँ पर कुछ रिएक्शन नहीं लगता है। और रिएक्शन नहीं लगने का दूसरा रीजन ये भी होता है क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम जो भी काम करते हैं वो हम खुद के सेंस सर्टिफिकेशन के लिए नहीं करते हैं। वॉट एवर एक्टिविटी वी परफॉर्म, द पर्पस इज टू प्लीज गुरु और कृष्णा। दिस इज द ओनली पर्पस। तो हम गुरु को प्लीज करने के लिए क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। भक्ति इसी को बोला जाता है। भक्ति मतलब के सेंटर पॉइंट बस यही होता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसका पर्पस क्या होना चाहिए, वेदर गुरु विल बी प्लीज्ड और नॉट, वेदर कृष्णा विल बी प्लीज्ड और नॉट। कृष्णा तभी प्लीज होंगे जब गुरु प्लीज होगी। तो हम जो बोलते हैं ना हरि गुरु वैष्णव, ये अभी IIYC मीटिंग में ये बहुत अच्छा पॉइंट बोले थे हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। हम बोलते हैं ना हरि गुरु वैष्णव। तो जीवन का पर्पस है कि हरि गुरु और वैष्णव तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए हमें? मतलब इसको स्टार्ट करना चाहिए हमें पीछे से, वैष्णव सबसे पहले वैष्णव से शुरुआत करना चाहिए। कई बार मतलब ऐसा हम सोचते हैं, है ना, आप लोग तो अभी उस मतलब उस लेवल तक अभी नहीं पहुंचे हैं, बट लेकिन मैं उस पॉइंट को बता रहा हूँ, है ना। जो लोग जैसे जब दीक्षा ले लेते हैं जैसे लोग, तो उनको लगता है कि बस माई गुरु और मेरे गुरु, बस माई गुरु बस, और मैं किसी को और ना मैं किसी को जानता हूँ, बस मैं केवल मेरे गुरु को जानता हूँ, बस मुझे केवल उनकी ही सेवा करनी है बस। बट दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड, दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड। क्योंकि उसको नहीं पता है कि गुरु कब प्लीज होंगे। गुरु तब प्लीज होंगे जब हम वैष्णव को प्लीज करेंगे। गुरु चाहते हैं कि जब जहाँ पे तुम रहते हो, जिस वैष्णव समाज में तुम रहते हो, मंदिर में जहाँ रहते हो, वहाँ के जो वैष्णव लोग हैं, वो वैष्णव लोग अगर खुश होंगे तभी गुरु क्या होंगे? प्लीज होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? वैष्णव को प्लीज करना चाहिए। जब वैष्णव जब प्लीज होते हैं, हाँ, क्योंकि अब देखो ना, अगर किसी भी एक भक्त के साथ अगर आपका रिलेशनशिप अगर सही नहीं है, जैसे आप देखो, मैं अभी जो मेरा भक्ति भाव क्लास चल रहा था उसमें 4th कैंटो में ये आता है प्रचेतास। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो प्रचेतास आर दी सन्स ऑफ प्राचीन वारीसर। तो प्रचेतास जब तपस्या करने जाते हैं, है ना, तो 10,000 साल तक तपस्या करते हैं वो इसलिए जाते हैं। प्राचीन वारीसर तो बोलते हैं कि टू बिगॉट चिल्ड्रन, उसके लिए तपस्या करने जाते। जब तपस्या करने जाते हैं तो वहां पर जो है नारद मुनि को जब पता चलता है कि अरे इस पर्पस के लिए तपस्या कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है,
है ना। तो वो फिर उनको जो है ब्रह्मचारी बनाने के लिए फिर वहां पर बताते हैं। नारद मुनि फिर बोलते हैं, उनको फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, वहां पर 4th कैंटो में आता है। फिर वो अब चूंकि नारद मुनि कृष्ण के भक्त हैं, तो फिर वो जो है वहां पर जब उनकी प्रचेतास की जब भक्ति को देखते हैं, तो प्रचेतास की भक्ति को देखने से फिर क्या होता है, शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर वहां पर शिव जी भी आते हैं और शिव जी फिर उनको बताते हैं कि वो कृष्ण को कैसे प्लीज कर सकते हैं। तो शिव जी फिर बताते हैं, मतलब कुछ मतलब श्लोक बताते हैं, कुछ मतलब मंत्र बताते हैं कि तुम कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो फाइनली फिर क्या होता है, जब विष्णु जब आते हैं, उनको दर्शन देते हैं प्रचेतास को, तो फिर वहां पर कृष्ण जो है वो मतलब विष्णु एक अच्छी चीज बोलते हैं प्रचेतास को। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी विथ योर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड और आई एम नॉट प्लीज्ड बाय योर ऑस्टेरिटी, बट आई एम प्लीज्ड बाय सीइंग योर म्यूचुअल कोऑपरेशन विथ ईच अदर। आप लोगों के बीच में जो आपस में जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उसको देखने से मैं जो है प्रसन्न हूँ। आपने जो तपस्या किया वो तो ठीक है, लेकिन मैं प्लीज किस चीज से हूँ कि आप लोगों के बीच में, एक दूसरे के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, उसको देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो वो सेम चीज वो है, हमें यहाँ से सीखने को भी मिलती है ना, कि रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशनशिप इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जीवन का पर्पस यही होना चाहिए कि हम जो है, हम भक्तों के बीच में संबंध बना रहे। तो छोटी छोटी चीजों के लिए हमें रिलेशन खराब नहीं करना चाहिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भक्ति जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डिवोटीज। जिन भक्तों के साथ में आप रह रहे हो, उनके साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आज हमें एक दिन रहना है या एक महीने रहना है, हमें तो पूरे जीवन काल भक्तों के साथ में रहना है। तो अगर उसके साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, तो फिर ना वो भक्ति अच्छे से कर पाएगा, ना हम भक्ति अच्छे से कर। और देखना चाहिए कि देखो, हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है। हो सकता है कि वो टॉयलेट नहीं कर पा रहा है, तो हमें टॉयलेट करना चाहिए, है ना। तो किसी एक को तो समझदार होना पड़ेगा। और भक्ति में उसी व्यक्ति को एडवांस व्यक्ति उसी को बोला जाता है जो व्यक्ति ज्यादा क्या करता है, सहता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा टॉलरेट करता है, उसी व्यक्ति को क्या माना जाता है, सीनियर भक्त माना जाता है। सीनियर भक्त मतलब ऐसा नहीं कि जो 10 साल से मतलब मंदिर में है, या कृष्णा कॉन्शियस में 10 साल से है या 20 साल से है। हो सकता है आप 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन अगर आपने आज तक अगर वो ह्यूमिलिटी नेचर नहीं आया है, कैसे बात करना है लोगों से, अगर ये चीज डेवलप अगर नहीं हो पा रही है, तो वो 10 साल रहना तो आपको सीनियर नहीं बोला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर 1 महीने से अगर मंदिर में आया है, लेकिन बहुत ज्यादा हम्बल है, वैष्णव की अच्छे से सेवा करता है, ही विल बी कंसीडर्ड एज अ सीनियर डिवोटी। व्यक्ति के आचरण से व्यक्ति को पहचाना जाता है। भक्त समाज में व्यक्ति के आचरण, उसका शिष्टाचार, उसका बिहेवियर, उसका डीलिंग्स विद द डिवोटीज, हाउ ही डील्स विद द डिवोटीज, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपकी मटेरियल नॉलेज को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा वहां पर, आपका आचरण क्या है वही रिकॉग्नाइज किया जाएगा यहाँ पर। मतलब नॉट ओनली इन स्पिरिचुअल लाइफ, नॉट ओनली इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इवन इन मटेरियल वर्ल्ड आल्सो। भले ही आप बहुत बड़े रिच परिवार से हैं, कुलीन परिवार से हैं, राज परिवार से हैं, बहुत पैसा है आपके पास, लेकिन अगर आपकी बात करने का ठीक नहीं है, अगर आप मीठी बात नहीं बोलते हैं, बहुत हार्श वर्ड बोलते हैं, तो कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। हो सकता है कि सामने कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके पीछे आपके जाने के बाद वो जो है आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, सो मच प्रॉपर्टी, सो मच मनी, दैट इज यूजलेस। रादर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका आचरण बहुत अच्छा है, तो लोग आपको वाह वाह करेंगे आपकी, हाँ वो सच नाइस, इतना अच्छे से बात करते हैं। यही बस जीवन का पर्पस यही है। चलिए, तो भक्ति में हम किस लिए आए हैं, बस केवल इसी चीज को सीखने के लिए कि हम कैसे हम्बल बने, हाउ टू बिकम हम्बल। भक्ति का जो बॉटम लाइन है बस यही है, क्या है, हाउ टू डेवलप ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी हम डेवलप करना चाहिए, यही जीवन का पर्पस है। वो जो व्यक्ति जितना ज्यादा हम्बल होता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा सरल होता है, वही वास्तव में भगवान के लिए प्रिय होता है। क्योंकि भगवान किसके हृदय में निवास करते हैं, जो व्यक्ति जितना ज्यादा सरल होता है व्यक्ति, क्योंकि उसके हृदय में कोई कपटता नहीं है, कोई डुप्लीशियस नेचर नहीं है उसके हृदय में। वो अंदर बाहर से कैसा है, सिंपल है। तो जो व्यक्ति अंदर और बाहर से एक जैसा होता है, व्यक्ति उसी के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए हमें
जितना हम्बल हो सकते हो हम्बल बनने का प्रयास करना, और हम्बल बनने का मतलब है टॉलरेट करना। हालांकि ये चीज इतना इजी नहीं है, इट्स नॉट वेरी इजी टॉलरेट करना, तो कोई व्यक्ति टॉलरेट करना नहीं चाहता है, लेकिन वो चीज जो व्यक्ति डेवलप कर लेता है वही जो है सीनियर होता है। तो जितना ज्यादा आप चीजों को टॉलरेट करोगे, जितना चीजें आप सहोगे, आप उतना ज्यादा मतलब वैष्णव की नजरों में, भगवान की नजरों में उतना ज्यादा ऊपर उठ जाओगे। तो हाँ, गुरु तभी प्लीज होंगे जब वैष्णव को हम प्लीज कर पाएंगे। हम मंदिर में रह रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, अगर अगर मंदिर में हमारी सेवा सब कोई प्लीज नहीं है, हमने किसी व्यक्ति, किसी भक्त को उल्टा सीधा बोल दिया या कुछ हार्श वर्ड बोल दिया, अगर वो प्लीज नहीं है हमसे, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारे गुरु हमसे प्लीज होंगे? नॉट पॉसिबल। तो गुरु, तो वैष्णव को हमें क्या करना चाहिए? प्लीज करना चाहिए। जब वैष्णव प्लीज होंगे तो गुरु क्या होंगे? सेटिस्फाई होंगे। तो वैष्णव को प्लीज करना चाहिए, गुरु पर सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो जब गुरु सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर हम भगवान की सेवा हम अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए हरि की सेवा करना है, गुरु को सेटिस्फाई करना है, और वैष्णव को करना है प्लीज करना है। ये है स्केल इसका। तो इसको शुरुआत करना चाहिए वैष्णव से। तो वैष्णव को प्लीज करना बहुत इजी है। वैष्णव को अगर हम प्लीज कर देते हैं, वो प्लीज कैसे कर सकते हैं? सेवा करने से, और हमारे ह्यूमिलिटी नेचर, सरल व्यवहार। तो वैष्णव जब प्लीज होते हैं तो हमसे गुरु और कृष्ण दोनों हमसे क्या होते हैं? प्लीज होते हैं। पर्पज। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हम तो माला कर रहे हैं या 2 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे तो अगर मैंने कुछ गलती कर दी है तो फिर वो भगवान क्षमा कर देंगे। हाँ ठीक है, एक बार अगर आपने कर लिया, अननोइंगली कर लिया तो ठीक है, भगवान उसको क्षमा करेंगे, लेकिन अगर जानबूझ के अगर आप करोगे बार बार तो फिर भगवान को क्षमा नहीं करते। राइट, पनिशमेंट आपको देंगे भगवान, लेकिन उसका पनिशमेंट का पर्पज क्या होगा? ताकि आप जो है राइट प्लेटफॉर्म पे आप आ जाएं और दोबारा से वो गलती ना करें। तो भक्ति में जो पनिशमेंट हमें मिलता है, उस पनिशमेंट का पर्पस होता है ताकि हम भक्ति में मतलब और आगे बढ़ जाए। मतलब नहीं तो फिर क्या होगा? पनिशमेंट अगर हमें नहीं मिलेगा, है ना, पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो भक्ति में हम पर प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। पनिशमेंट से क्या होता है? हमारा जो ईगो होता है ना, ईगो भी चला जाता है। नहीं तो फिर क्या होता है? ईगो जब बढ़ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं? फिर अपराध हो जाता है हमसे। एक्चुअली अपराध का रूट कॉज क्या है मालूम? अपराध हमसे क्यों होते हैं? जब हम वैष्णव को मतलब मटेरियल चीज पे उनको क्या करते हैं? देखते हैं मटेरियल लेवल पर उनको जज करने लगते हैं, तब हमसे अपराध होता है। एक्चुअली अपराध का ये रूट कॉज है। या उसको हम मटेरियल बैकग्राउंड से देखते हैं, अरे ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो सड़क छाप है, ये क्या मंदिर में सेवा करेगा, है ना, ये तो इलिटरेट है, ये क्या है? ये बहुत बड़ा अपराध करते हैं। देखिए भक्ति जो है वो मटेरियल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड नहीं करती है। भले ही आप चाहे आईआईटी से आए हो या चाहे इलिटरेट हो, भगवान की नजर में सेम है। हो सकता है आप आईआईटी पढ़ के आए हैं, लेकिन अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आप है कि नहीं, यहाँ पर डीलिंग्स ठीक नहीं है, और लेकिन एक इलिटरेट है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप है, लेकिन वो उसका आचरण बहुत अच्छा है, तो बताइए आप किसकी नजर में मतलब भगवान किसको मतलब वो करेंगे सिलेक्ट? इलिटरेट व्यक्ति, क्योंकि उसका आचरण अच्छा है। तो पढ़ा लिखा ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? आपका बिहेवियर, आपका डीलिंग्स कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वो आपकी जो योग्यता है, वो जो क्वालिफिकेशन है, वो कृष्ण की सेवा में यूज करना चाहिए उसको हमें, ना कि पब्लिक होना चाहिए हमें। भगवान हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक चीज भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं, वो होता है भक्त का अहंकार। जब भक्त को जब थोड़ा सा भी प्राइड आता है, वो चाहे उसको सेवा का प्राइड अहंकार आए, चाहे उसको अपनी मटेरियल क्वालिफिकेशन का अहंकार आ जाए, राइट, किसी भी चीज का अहंकार आए, जब अहंकार जब व्यक्ति को आता है ना, तो भगवान उसको फिर बर्दाश्त नहीं करते। उसको फिर चूर करने के लिए फिर भगवान जो है ना किसी ना किसी को माध्यम बना के उसका अहंकार को फिर चूर कर देते हैं। फिर हमें लगता है कि यार क्या हो गया, क्या हो गया। भक्ति बहुत सिंपल है, लेकिन हमारा जो जब अहंकार जब आ जाता है ना, तो फिर वो हमें भक्ति, वही सिंपल भक्ति बहुत टफ हो जाती है फिर हमारे लिए। इसलिए हमें अपराध से बचना चाहिए, और अपराध से हम कब बचेंगे? जब हम हमारा जो फॉल्स ईगो जब चला जाएगा, और फॉल्स ईगो तभी जाएगा जब हम हम्बल होंगे, और हम्बल हम तभी हो पाएंगे जब हम वैष्णवों की सेवा करेंगे। तो अल्टीमेटली जो की पॉइंट है ना, वो है क्या? सेवा। जब हम सेवा करते हैं तो अहंकार चला जाता है हमारा, और हम देन वी बिकम हम्बल, तो अपराध नहीं होती। इसलिए हमें कभी भी भक्तों को हमें कभी भी अपनी
सरल बुद्धि से कभी जज नहीं करना चाहिए कि वो गोरा है, वो काला है कि नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लाइक सो मेनी थिंग्स। डिवोटी होता है ऐसा नहीं कि IIT डिवोटी, इलिटरेट डिवोटी। प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, गोल्ड गोल्ड ऐसा नहीं होता, इंडियन अमेरिकन गोल्ड, गोल्ड इज गोल्ड। इसलिए भक्त भक्त होता है, मतलब क्वालिफिकेशन को उस हिसाब से तोलना नहीं चाहिए हमें। डिवोटी इज डिवोटी। देन रियल अटेनमेंट क्या है? वास्तव में अगर हमें पश्चाताप करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे गलती का पश्चाताप करना, तो रियल अटेनमेंट क्या है? रियल अटेनमेंट इज अवेकनिंग द डोरमेंट ऑफ कृष्णा। दिस इज द रियल अटेनमेंट। तो ये जो अटेनमेंट है, एलिफेंट bathing and Christians confessions, these are not real bathing, real attainment। क्योंकि इससे क्या होगा, वो तो जो उसकी जो सिंफुल एक्टिविटी करने की जो टेंडेंसी है वो तो कम नहीं हो रही ना, वो खत्म तो नहीं हो रही है कि नहीं। अटेनमेंट का मतलब होता है कि वो चीज फिर दोबारा से हम रिपीट नहीं करेंगे, है ना। नो, अभी वो रिपीट नहीं करेंगे। दैट इज द रियल अटेनमेंट। वो तो क्या कब होगा? जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब बने रहेंगे। दैट इज द रियल अटेनमेंट, अवेकनिंग ऑफ डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, बहुत सारे लेसन्स हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं। तो दिस इज द एलिफेंट। आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जहाँ पर भी पॉन्ड होता है तो वहां पर क्या होता है, थोड़ी वहीं पे उससे लग के गीली मिट्टी रहती है, तो वो क्या करता है, हाथी गीली मिट्टी पूरा लगाएगा शरीर पे, उसके बाद फिर नहा रह जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला है, तो ये यूजलेस है, केवल सिंपली वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्रिश्चियंस दे कन्फेस्ड, है ना, sinful activities one day on Sunday, then again they commit sinful activities on from Monday to Saturday. Then only bhakti can save a person from entering hellish planets. So this is very nice verse. Somebody can read the एक मिनट, let me show you that verse. Okay, this is the shloka. केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं ध्वनवन्ति कात्स्नेय निहारम् इव भास्करः। Does anybody wants to read the translation? Anyone can unmute yourself and read the translation. Anyone? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, only a rare person who has adopted complete unalloyed devotional service to Krishna can uproot the weeds of sinful action with no possibility that they will revive. He can do this simply by discharging devotional service, just as the sun can immediately dissipate fog by its rays. So this is the only one possibility that uproot the weeds of sinful actions. Then there is no possibility that will revive. That will revive means then he will commit a sinful activities again. There will be no possibility. Then what is that? Just to involve in unalloyed devotional service to Krishna. So only Krishna consciousness can uproot the seeds of sinful reaction. Then there will be no possibility to commit their sinful activity again. Right? So Prabhupada, तो यहाँ पर Prabhupada example दे रहा है किसका, like just as the sun, as soon as the sun appears, then fog disappears from that place. So similarly, bhakti or Krishna consciousness or unalloyed devotional service is like that. Krishna सूर्य सम, माया अंधकार, जहार कृष्णा तहार नहीं मायर अधिकार. So Krishna सूर्य सम, Krishna is like a sun, Maya अंधकार, Maya is like a darkness. जहाँ कृष्णा तहार नहीं मायर अधिकार. Wherever there is a Krishna, then there is no place of Maya. And where is Krishna? Where there is a devotee. जहाँ पर भक्त हैं वहां पर कौन है? कृष्ण है. वहां पर माया कोई अधिकार नहीं होता है. इसलिए मंदिर के अंदर 3 moods of model nature काम नहीं करते हैं. There is 3 moods of model nature जो है मंदिर के अंदर काम नहीं करते, क्योंकि वो भगवान का प्लेस है, वो धाम है, ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी होती है वहां पर सब. There is no place of 3 moods of model nature. Yeah, understand? Okay, so then
So there are two kind of tapasya. One is traditional tapasya and one is pancharatri tapasya. So what is traditional tapasya? So traditional tapasya means celibacy, austerity, mind and sense control, truthfulness, cleanliness, renunciation and yoga asana. So these are the traditional tapasya जो generally लोग जो करते हैं, है ना. But according to Srila Rupa Goswami, what is the पंचरात्र की तपस्या? डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है. ये भक्तों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या करना है? ABCD, एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, प्रपाद बुक रीडिंग्स, then chant of the holy name of the Lord and taking Krishna prasadam or deity worship, right? And don'ts, क्या नहीं करना है? No meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex. So we have to follow the 4 regulative principles. They are called the Pancharatric Tapasya. Then urge to speak. So practically everybody wants to speak. So those persons who are materially engrossed, being blind to the knowledge of ultimate truth, have many subject matters for hearing in human society. O Emperor. So Srimad Bhagavatam. So Sukadeva Goswami is telling to Parikshit Maharaj here, okay, those persons who are materially engrossed, materially puffed up, their ultimate goal is only material opulence. So, and being blind of that materially opulence, they don't have transcendental knowledge. And for those persons, there are a lot of subject matters for hearing. इसलिए हम देखते हैं जब हम ट्रेन में जब सफर तो वहां पर लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन भगवत गीता पढ़ने के लिए या हरिनाम को सुनने के लिए, हरिनाम करने के लिए रेडी नहीं होते. न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, नोवेल पढ़ने के लिए they are ready, they have time for that, but for chant, but for harinam, for reading Bhagavad Gita, they don't have time. So these are materially engrossed people, right? They don't have any interest because they are covered by the Maya, right? Krishna's external potential. तो ऐसे लोगों के पास बहुत टाइम होता है बोलने के लिए, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, पूरा सोसाइटी में, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, दे हैव सो मेनी टॉक्स. वो बोलना शुरू करेंगे, खत्म नहीं, मतलब रुकेंगे नहीं, पूरा रात दिन वो बोल सकते हैं. लेकिन उनसे बोलो कृष्ण के बारे में कुछ बोलो, माला जप करो, नो, कुछ नहीं बोल पाएंगे, नथिंग. What is the mind? They are called materially engrossed people. For material activity, they have a lot of time, but for spirituality, they don't. So then urge to speak. So this is the first urge, Vacho Vegam. So now basically this sloka starts from now. The first urge. What is the Vacho Vegam? So that will start from tomorrow onwards. Okay. So what is the urge of speech and how to control the each urge? How to control the Vacho Vegam, urge of speech? How to control the anger? So gradually we will. Because this book is very, very much important, right? So we will go slowly, because the purpose is not to complete the book. Of course, that is the purpose, but the main purpose is to understand, because this book is very, very much important. And like, as I told you in the beginning also, that this book generally covered in the Bhakti Shastri course, right? So, and like, as a devotee is very, very much important. So, Hare Krishna. Does anybody have any question from today's class? Or everything understood from today's class? Basically, this book is a practical book. Practically हम देख सकते हैं, अभी 2 सेशन हुए हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक है, ये बाकी दूसरी बुक से कैसे मतलब अलग है. अभी समझ में आ रहा है ना, ये जो बुक है बाकी दूसरी बुक से कैसे अलग है. इसमें जितना भी हम पढ़े हैं, जैसे आज की क्लास से आप बता सकते हैं जितना भी हमने डिस्कस किया वो सब सारे पॉइंट क्या है, प्रैक्टिकल है. बाकी आप जैसे
प्रपात दूसरी बुक्स पढ़ेंगे वो फिलोसफी है, लेकिन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक, नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक, ये जो दो बुक है ना, ये क्या है, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। मतलब आप खुद चेक कर सकते हो कि मेरा भक्ति कहाँ जा रहा है, मैं राइट ट्रैक पे हूँ कि नहीं, आप चेक कर सकते हो। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज वन ऑफ देम। आप चेक कर सकते हैं कि हाँ मैं राइट पाथ पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, और मुझे कितना और प्रोग्रेस करने की अभी जरूरत है, मुझे कितना सीखने की जरूरत है, ये आपको चेक करेगा इस तरीके से। ओके, सो आई विल स्टॉप इट हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु श्री गुरुपाद की जय। हरे कृष्ण।